बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। दुर्गापुर में एक नेत्रहीन महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने का आरोप तृणमूल श्रमिक संगठन के संयुक्त सचिव शेख रमजान के भाई शेख गेंडा पर लगा है। आरोप है कि शेख गेंडा ने महिला से पैसे लिए लेकिन नौकरी नहीं दी। कोकोवेन थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई है। 4 साल पहले सागर भांगा औद्योगिक क्षेत्र के एक निजी कारखाने में नौकरी का वादा कर शेख गेंडा ने महिला से 1 लाख रुपए मांगे। महिला ने 40,000 रुपए दिए। बाकी राशि नौकरी मिलने के बाद देने की बात हुई, लेकिन नौकरी नहीं मिली और पैसे भी वापस नहीं किए गए। महिला का आरोप है कि शेख गेंडा ने उसे धमकी भी दी। महिला ने सरकार से मिलने वाली दिव्यांग भत्ता की बचत से ये राशि दी थी। अब नौकरी और पैसे दोनों ना मिलने से परिवार हताश है। इस घटना ने राजनीतिक विवाद को हवा दी है। विपक्ष ने सत्ताधारी दल पर निशाना साधा, जबकि तृणमूल जिला उपाध्यक्ष उत्तम मुखोपाध्याय ने गलती स्वीकारी। इसी बीच सागर भंगा में स्थानीय लोगों की नौकरी की मांग को लेकर तृणमूल के कुछ कार्यकर्ता एक निजी कारखाने के सामने आंदोलन कर रहे हैं। इस ठगी की घटना ने और हंगामा मचा दिया है। কিসের জন্য টাকা নেওয়া হয়েছিল আপনার? আমার স্বামীকে বলেছিল যে কাজ করে দেবো, এবারে কাজ করে দেবো বলেছিল। আমি আবার কষ্ট করে আমার বিয়ের আগে টাকাটা আমি জমিয়ে পড়ে আমি টাকাটা দিয়েছিলাম। দিয়ে আমি বললাম যে ওকে বললাম যে আগে তোমার কাজটা করে দেবে তো না, বলছে হ্যাঁ আমাকে কাজটা করে দেবে, তুমি টাকাটা দাও। দিয়ে ওর হাতে আমি টাকাটা তুলে দিয়েছি। ও আবার জ্ঞানটাকে আবার আমাদের ওখানে গৌতম আছে, যে গৌতম ছিল শুধু প্রেজেন্ট, দিয়ে ও আবার টাকাটা আবার দিয়ে গিয়েছে। গৌতম হ্যাঁ কতদিন আগে দিয়েছিলেন? 4 বছর। চাকরি হয়নি? না। কোথায় চাকরি করে দেবে বলেছিল? ওইখানে দুর্গাপুরে। হ্যাঁ। তো আপনি এই টাকাটা জমিয়েছিলেন কিভাবে? আমি অনেকদিন আমি টাকা এই যে আমি একটা টাকা পাই না প্রতিবন্ধী হ্যান্ডিক্যাপের টাকা থেকেই আমি টাকাটা জমিয়েছি। টাকা আমি তুলতাম না। সেই টাকাটা তুলে দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, সেই টাকাটাই আমি তুলে দিয়েছি। আর রঞ্জন ওকে পাঠাইছিল টাকাটা আনতে, যে টাকাটা তুই লিয়ে আয়, আমি চাকরিটা করে দেবো। ও দাদা এখন যখন টাকা চাইছেন কি বলছে? এখন বলছে যে আমার যে আমি টাকা দেবো না, আমি টাকা নিই নাই। কোনো রকম হুমকি দিচ্ছে? হ্যাঁ, হুমকি দিচ্ছে। আমি সেদিনে ভালো করেই বললাম যে দাদা আমার টাকাটা দিয়ে দাও। না, বলছে না আমি এখন দিতে পারবো না, আমি গৌতমকে টাকাটা দিয়ে পাঠাবো। দিয়ে আবার আজকে আবার গিয়েছি, বলছে না আমি টাকা নিই নাই, টাকা আমি দিই নাই, টাকাটা নিয়েছে গৌতম। আমি না গৌতম নাই নাই, টাকাটা তুমি নিয়েছো, আমি তোমার হাতে টাকাটা আমি দিয়েছি। না, বলছে না ফোনে বলেছে ওর বউকে। কি নাম আপনার? মামুনি রায়। মামুনি রায় নামে এক মহিলা অভিযোগ করেন গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেডে তার হাজব্যান্ড একজন হ্যান্ডিক্যাপ পরিবার, চাকরি দেওয়ার জন্য 40,000 টাকা নেওয়া হয়। যারা ইউনিয়নের ক্ষমতায়, এই ইউনিয়নের ক্ষমতায় থাকা নেতারা, শেখ রমজান থেকে শুরু করে তার ভাইরা প্রতিনিয়ত বহিরাগত লোকদের এনে এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেডে চাকরি দিচ্ছে। আর স্থানীয় বেকার যুবকরা কর্মচ্যুত হচ্ছেন, কর্মহারা হচ্ছেন এখানে। এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাই। স্থানীয় বেকার যুবকরা মিলে যে রাজনৈতিক দলের হোক না কেন, তারা যে আন্দোলন করবেন তাতে আমাদের 200% সমর্থন থাকবে। এবং এই বহিরাগত লোকেদের এনে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকার বিনিময়ে স্থানীয় বেকার ছেলেদের ভবিষ্যৎকে যারা অন্ধকারে তলানিতে ঠেলে দিচ্ছে, আমি সেই সমস্ত ছেলেদের কাছে অনুরোধ করব এদের বিরুদ্ধে লড়াই নামার জন্য। সেখানে পূর্ণ সমর্থন আমাদের থাকবে। আর অবিলম্বে দোষীদের উচিত গ্রেপ্তার করে উচিত শিক্ষা দেওয়া, এই দাবি আমরা জানাচ্ছি ভারতীয় জনতা পার্টি। যদি এরকম ধরনের কারো কোনো অভিযোগ থাকে, লোকাল থানার ওসি সাহেবের কাছে আপনি এফআইআর দায়ের করুন। যিনি টাকা নিয়েছেন তিনি ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।
কারণ আমাদের দলের কোনো রকম ধরনের এরকম কাজকর্ম বরদাস্ত করা হয় না, সেটা ভালো করে দেখেছেন। দলের হয়ে যে কাজ করে তাকে দলের জন্য সাহায্য করা হয়, যে দলের বাইরে, দলের নির্দেশের বাইরে যে এই সব ধরনের কাজ করে তাকে কিন্তু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়, সেটা কিন্তু হবে। আপনারা এই পরিবারের পাশে আছেন? হ্যাঁ, আমরা নিশ্চিতভাবে একটা প্রতিবন্ধী পরিবার, সে পরিবারের পাশেই, সে তো বড়জোড়ার লোক। আমরা তো দুর্গাপুর বড়জোড়া তো কাছাকাছি, তো বড়জোড়ার আমার কাছে যে কমপ্লেনটা আছে, যে উনি বলেছেন, তো আমি বলেছি আমরা সাহায্য করব, আপনার অভিযোগ দায়ের করব। आसनसोल के मुर्गासौल इलाके के एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सेमिनार आयोजित किया। मुख्य वक्ता भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि बार बार चुनाव से सरकारें देश हित में कड़े फैसले लेने में हिचकिचाती है और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। उन्होंने पूरे देश में एक साथ चुनाव की वकालत की। कार्यक्रम में कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल, वरिष्ठ नेता कृष्णनंदू मुखर्जी, जितेंद्र तिवारी, लक्ष्मण घुरई, जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सेमिनार में इस अवधारणा के लाभों पर चर्चा हुई और इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। सभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश से, लोक क्षेत्र में काम करने वाले सारे हमारे एडवोकेट से, जो इस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे सभी लोगों से मिलकर इस व्यवस्था को कैसे बनाया जाए, कब, कहां, कैसे, वन नेशन वन इलेक्शन का अगर ये बिल बनता है तो कैसे इसको हम आगे जाकर एग्जीक्यूट करेंगे, उस पर एक आम सहमति बनाना और सबके सुझाव लेने का काम ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करने वाली है। इसलिए पूरे देश भर में जब ये चर्चा शुरू हो तो अपने पश्चिम बंगाल के भी सभी स्थानों पर इस सब के होने के फायदे क्या हैं, क्या इसके कारण से लाभ होगा, ये सभी देश में एक अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। उस दृष्टि से आज यहाँ पर भी हमारी एक संस्था के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बार बार चुनाव होने के कारण से अगर मैं यहाँ भी पूछूंगा तो बहुत सारे आप में से सभी प्रबुद्ध लोग बता सकते हैं कि बार बार चुनाव होने के कारण से क्या नुकसान होता है। अगर मैं मेरी नजर में देखता हूं तो सबसे बड़ा नुकसान है बार बार चुनाव होने के कारण से कि हमारे देश में जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, अगर हर बार चुनाव होंगे, बार बार चुनाव होते हैं तो देश का विकास सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मैं केवल एक महाराष्ट्र का आंकड़ा देता हूं। पिछले महाराष्ट्र के 5 साल की जो सरकार रही, उस 5 साल के शासनकाल में 300 दिन, 5 साल में 300 दिन अकेले महाराष्ट्र में आचार संहिता लगी रही, 300 डेज। अब आप सोचिए, एक सरकार को काम करने के लिए 5 साल का समय मिला है और उसमें से लगभग 300 दिन यानी 1 साल अगर किसी स्टेट में आचार संहिता लगी रहे तो उस स्टेट में कैसे डेवलपमेंट होगा। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832
8221389 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। कुल्टी थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब 5 बजे बस स्टैंड के पास शराबी कार सवारों ने बस चालक सज्जाद की बेरहमी से पिटाई कर दी। सज्जाद ने शराबियों को लापरवाही से कार चलाने से मना किया था, जिसके बाद 5 शराबियों ने उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सज्जाद को स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। स्थानीय लोगों ने 2 शराबियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि 3 फरार हो गए। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी और सजा की मांग को लेकर बस और ऑटो चालक हड़ताल पर है, जिससे सवारी वाहन बंद है और यात्रियों को परेशानी हो रही है। दिक्कत कुछ नहीं हुआ, किसी से कोई झमेला नहीं हुआ, समझे। हम अपने बस को स्टॉप किया, उधर से जो आया गाली बक का हम समझे किया हुआ, हम बोला जा भाई। उसमें से 2 लड़का उतरते हैं, कांच फोड़ दिया, एक मत मार है। जब कांच फोड़ा वो लोग 4 आदमी भाग गया गाड़ी लेके, एक को दौड़ा के मुँह धरे, वो को गाड़ी में धरा और बाकी गाड़ी लेके भाग गया है। हाँ, देखा कांच फोड़ दिया ये लोग। क्या नाम हुआ आपका? सैयद अली। आप क्या करते हैं? बस चलाते हैं, बस का खलासी हैं, ड्राइवर हैं। रानीगंज में सीताराम जी भवन परिसर में कोलफील्ड टिम्बर एंड साव मिल ऑनर्स एसोसिएशन की वार्षिक सभा आयोजित हुई। आसनसोल दुर्गापुर डिवीजन के प्रतिनिधियों ने संगठनात्मक ढांचे, औद्योगिक समस्याओं और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय तिवारी, सचिव प्रकाश सिंह, उपाध्यक्ष आनंद अग्रवाल, सलाहकार खेमजी भाई पटेल, कैलाश कयाल, किशोर पटेल, कृष्णा सिंह, देवेंद्र पटेल, गुरमीत सिंह, कृष्णकांत बैनर्जी सहित कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। अध्यक्ष संजय तिवारी ने उद्योग की चुनौतियों का जिक्र करते हुए एकजुटता और सरकारी स्तर पर मजबूत पैरवी पर जोर दिया। सभा में सभी सदस्यों ने संगठन को सशक्त बनाने और आगामी चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर सहमति जताई। एनुअल जनरल मीटिंग सीताराम जी भवन रानीगंज में किए हैं। कोलफील्ड टिम्बर एंड सॉमिल ओनर एसोसिएशन पश्चिम बर्धमान का एकमात्र ये सॉमिल ओनर एसोसिएशन है जो दुर्गापुर से लेके बराकर के साथ साथ झारखंड के बॉर्डर को भी टच करता है। इसमें करीब हम लोग 150 मेंबर हैं। हर 2 वर्ष में हम लोग का वार्षिक सम्मेलन होता है। इस वार्षिक सम्मेलन इस बार हम लोग के, और इस बार हम लोग का क्या है, इलेक्शन भी है। तो आफ्टर सेकेंड टाइम हम लोग का इलेक्शन होगा। इलेक्शन में सिलेक्शन ही होता है। हमारे सीनियर एडवाइजर बैठ के चर्चा करते हैं किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको सेक्रेटरी बनाना और कमेटी बनाना। खासकर आजकल हम लोग का आलोचना हुआ सबसे बड़ा है हमारा लाइसेंस को लेके। रिन्यूअल लाइसेंस अभी इस साल से हम लोग का ऑनलाइन होना शुरू हो गया। उसमें काफी दिक्कतें थोड़ी बहुत आ रही थी, जो हम लोगों ने डिपार्टमेंट से बात कर उसको कुछ सही किया है, कुछ अभी भी बाकी है। कुछ लोगों का रिन्यूअल अभी नहीं हो पाया है ऑनलाइन के जरिए के कारण। वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलकर हम लोग उसको पूरा करें, और आशा करते हैं कि इस महीने में वो हो जाएगा। सरकार के तरफ से विशेष मान है। कुछ हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था इधर, जैसे फायर लाइसेंस और पॉल्यूशन में, उसका भी बात हुआ है। महीने डीएम साहब की मीटिंग होती है, उसमें चर्चा भी होती है इसको लेके। उसके बारे में हम लोगों ने पत्र नवान में लिखा है कि कुछ फॉरेस्ट में हमारी अड़चने आ रही है, उसके बारे में
और हमने ट्रैक्टर किराए पर लेने के बाद जाली दस्तावेज बनाकर उसे बेचने के आरोप में जमुड़िया पुलिस ने सुमित कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने जांच के दौरान 7 ट्रैक्टर बरामद किए। सुमित का घर जमुड़िया के श्रीपुर में है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के डीसीपी सेंट्रल ध्रुवदास ने बताया कि बाड़ुल गांव के आशीष कुमार मंडल ने अपना ट्रैक्टर सुमित को किराए पर दिया था, जिसके लिए 12,000 रुपए मासिक किराया तय हुआ, लेकिन सुमित ने बहाने बनाकर पैसे नहीं दिए और मार्च में दावा किया कि ट्रैक्टर चोरी हो गया। आशीष ने जमुड़िया थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने 8 मई को सुमित को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि वो कारखानों के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेता था, जाली दस्तावेज बनाकर उन्हें अपने नाम करता और फिर बेच देता। पुलिस ने अब तक 7 ट्रैक्टर बरामद किए, जिनमें 6 इस जिले से और 1 झारखंड से मिला। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि सुमित ने और कितने वाहनों को इस तरह हड़पा। सोमवार को सुमित को आसनसोल कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।